السلام علیکم حاجی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی؟ میں تو ادھر تھا ہاں، ضلع دین کے لیے ہجرت کی انہوں نے، وطن چھوڑا، مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ اللہ پاک ان کی دعاؤں میں برکت ڈالے اور ہمیں کامیابی دے، اللہ آپ کو مدینہ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ملک محمد زمان اترا کا سلام پہنچے۔ ہمارا چینل اترا بھائی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں۔ جی ویورز، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک بزرگ شخصیت سے جو کہ 100 سال سے زیادہ عمر تقریباً رکھتے ہیں۔ بتاتے تو وہ کم ہیں لیکن جو کرائن ہیں وہ بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے بال سیاہ ہو چکے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ وہ حکمت بھی کرتے ہیں اور ساتھ انہوں نے کھانا بھی بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے کیمرہ مین کی حیثیت سے چلیں گے ہمارے عزیز بھانجے ملک حذیفہ اترا۔ تو چلتے ہیں پیر حامد شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جی السلام علیکم حاجی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل۔ یہ ہیں جی پیر سید حامد حسین شاہ صاحب، ہم ان کے پاس آئے ہیں، اب ہم آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں۔ جی حاجی صاحب، خیر وافیت ہے؟ اللہ شکر ہے۔ اچھا جی حاجی صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے جب ہجرت کی تو آپ کی عمر عزیز کتنی تھی جی؟ میری عمر تھی 16 سال۔ اچھا جی، ہم رہتے ہیں کوٹ شریف کے اندر۔ اچھا آپ، ہمارے دادا جی کا پردہ روزہ مبارک تھا، اچھا مسجد تھی، اچھا جی، امامت ہماری تھی، اچھا جی، تمام شہر کے اندر وہی مسجد تھی۔ اچھا پورے کوٹ شریف میں؟ سولہ کوٹ اچھا، کوٹ شریف کس ضلع میں ہے جی؟ ضلع امبالہ ڈویژن تھا۔ اچھا ڈویژن کے اندر امرتسر، گرداسپور، اچھا ہوشیارپور، یہ 4 ضلع تھے۔ اچھا، امبالہ ڈویژن تھا؟ ہاں۔ اچھا جی، اور اچھا امبالہ چھاؤنی بھی تھا، انگریزوں کی چھاؤنی کی بڑی بات۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیں کہ آپ اسکول میں بھی پڑھتے تھے؟ ہاں، 7ویں میں، اچھا 7ویں میں اچھا، تو اس وقت آپ شہر سے باہر کہیں پڑھتے تھے؟ میں پڑھتا تھا ضلع حصار، بلواڑہ سیدان، جہاں 900 گھر شہیدوں کے پاس۔ وہاں میری ہمشیرہ تھی، اچھا شادی شدہ، میں وہیں رہتا تھا۔ پھر پارٹیشن میں انہیں کے ساتھ آیا، میں اچھا پیدل چل کے آیا پاکستان۔ اچھا جی، آپ اپنی ہمشیرہ جو آپ کی ہمشیرہ میرسی میں رہتی ہیں؟ نہ، ہم میلسی میں، اچھا جی، پہلے وہ کوٹ تھی ہمارے، میں ان کے گھر تھا، وہ ہمارے گھر تھے۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں جی، کیا آپ کا وہاں کو باغ وغیرہ بھی تھا؟ 12 بیگھے کا باغ تھا۔ اچھا، 12 بیگھے یعنی 6 ایکڑ پر آپ کا باغ؟ باغ تھا۔ اچھا جی، اچھا جی، آپ وہاں پر والد صاحب کے پاس یا کسی کے پاس حکمت بھی سیکھتے تھے؟ بس سینے پسینے اچھا پنسار ہے ہماری، اچھا حکمت نہیں کہو، پنسار ہے۔ اچھا شہر کے آئے تھے لوگ، کہنے کہ بھی ہم قید آباد جاتے ہیں، آپ پنسار رکھیں۔ اچھا، میں نے 100 فجوانہ رکھ لی ہو۔ ہاں، اور کوئی ایسی بات جو آپ کو یعنی کہ پاکستان میں آنے کے بعد آپ کو جو اچھی نہ لگی ہو؟ ہمیں سب کچھ اچھا لگا۔ اچھا ہم نے آ کے کسی کے پاس بھیک نہیں مانگی، اچھا، نہریں کھودی ہیں، پانی چالو ہو گیا، پھر یہی جو چلے مہاجر بنا؟ یہ میں نے خود دیکھا۔ اچھا، 1.5 منٹ کتنی مزدوری تھی جی؟ 12 12 آنے مزدوری؟ اس کے بعد جو ختم ہو گئی، پانی چلتا ہو گیا، پھر ہم نے یہ کی کیا، چنے کپے، اچھا، کھنکا بٹیاں۔ آپ نے جب ہجرت کی تھی، آپ بتا رہے تھے آپ 16-17 سال کی عمر تھی، 16 تو آپ سیدھے یہاں آئے تھے یا کہیں اور؟ ہم چلے امبالے سے ریل گاڑی میں، اچھا آ کے گاڑی ٹھہری لاہور، اچھا اسٹیشن پر رہے ہم اچھا 2 دن۔ اس کے بعد ہم چلے گئے سیالکوٹ، اچھا وہاں کالا کیمپ تھا، اچھا وہاں رہے۔ پھر وہاں سے سرگودے آ گئے، اچھا، سرگودے اسٹیشن پر رہے، سرگودے سے پھر اترا شریف میں۔ نہیں یہ تو آپ کے باقی گھر والے آئے تھے نا، آپ تو کہہ رہے تھے آپ میں تو ادھر تھا، ہاں، میں تو ادھر تھا ضلع بہاڑی کے اندر۔ آپ جب وہاں سے آئے تھے تو سیدھے بہاڑی گئے تھے؟ بہاڑی، اچھا، بہاڑی سلیمان کے راستے، پیدل کے راستے آئے۔ پیدل چل کے آئے تھے؟ نہیں وہاں سے تو آپ ریل کے ذریعے نہیں آئے تھے؟ نہیں میں نہیں آیا، میرے والدین آئے۔ اچھا، وہ ریل کے ذریعے آئے تھے، آپ لوگ پیدل آئے؟ آپ لوگ پیدل آئے تھے؟ ہاں، اچھا، تو اپنا پھر کتنے عرصے بعد آپ اپنے والدین سے ملے؟ وہ جی 1 سال ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد، یعنی 49 کے بعد جہاں آگے
मैं वहाँ था। अच्छा फिर मेरा बहनोई था पुलिस में, उन्होंने पता किया भी कहाँ है, फिर वो यहाँ आए, यहाँ से मेरे अब्बा जी गए साथ, अच्छा फिर जाकर मुझे ले अच्छा आपको फिर बूढ़े लाया। वाले से फिर यहाँ आया, फिर आकर नहर खोद दी, अच्छा लाभियाँ करी, मजदूरियाँ करी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जब आप आए थे तो इन घरों में कोई चीज़ नहीं थी, नो नो हाथी करी, कोई जानवर वगैरह कोई चीज़ नो नो कोई चीज़ नहीं, सिर्फ घर थे। घर खाली। अच्छा जी हाजी साहब, तो आपने फिर शादी किस उम्र में की? शादी की हमने 52 में। 52 में आपकी शादी भी हो गई? हाँ सन 52। अच्छा यानी उस वक्त यानी कि 2-3 साल बाद आपने शादी हाँ कर शादी। बड़े आप हैं ना? हाँ बड़ा। अच्छा मेरे से 2 छोटे भाई, अच्छा दो शौकत हुसैन और रफाकत हुसैन, वो दोनों अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह उनको जन्नत मिल जाए, हमें सब लोग नहीं रहता। अच्छा जी ये बताएं कि आपके बेटे कितने हैं? मेरे बेटे माशाल्लाह 5 हैं। अच्छा पांचों सेटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आपके पोते? 2 इस्लामाबाद है, अच्छा जी 2 यहाँ मेरे पास है, एक लंदन है। सबसे छोटा लंदन में है सैयद आसिफ हुसैन। हाफिज कुरान, आलम, AA, वकील था हाई कोर्ट में, शादी होगी लंदन, अच्छा जी वहीं चला गया। वही सेटल। हाँ, उसकी बेगम फौत हो गई, बच्चे हैं छोटे छोटे, लड़की 10 साल की है, उससे छोटा बेटा 6 साल का, छोटा बेटा 4 साल का, अल्लाह उनको सब्र दे। आमीन। अच्छा जी आप ये बताएं कि आपने हज उम्रा भी किया है? हाँ माशाल्लाह, मैंने सन 88 में हज किया, अच्छा पहला हज अच्छा हज किया, और गारे सौर पर पहुंचा मैं उसमें, अच्छा जवान था मैं। अच्छा गारे हीरा तो थोड़ी नज़दीक है, गारे सौर 3.5 मील है, गारे हीरा 1.5 मील है, मैं दोनों जगह गई। उसके बाद फिर 4 उम्रे किए मैंने, अच्छा हजूर की सुन्नत पूरी की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज फरमाया, 4 उम्रे किए, मैंने पूरे किए। अच्छा जी ये बताएं कि जब आप हज पे गए थे तो कितना खर्चा आया था आपको? मेरा 26,500। उस वक्त 1988 में 26,500 साढ़े खर्चा। छब्बीस, आप हवाई जहाज के जरिए गए थे? बैरी जहाज? हवाई जहाज, अच्छा ये कहाँ से? कराची से? कराची, अच्छा 26,500 कराची से खर्चा आया था, खाना पीना हर चीज बिछी, वहाँ पे कुर्बानी हर सब चीज हर चीज हर चीज। अच्छा 26,500। अच्छा तो कितना अर्सा वहाँ रहे थे आप? 40 वहाँ दिन? में रहे 48 दिन, 40 दिन। 48 दिन। अच्छा यानी उस वक्त ज़्यादा पीरियड था? हाँ चलो 48 दिन। 48। अच्छा जी हाजी साहब आप माशाल्लाह आप तो खुशहाल हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ आए थे तो कुछ भी नहीं था, ना, बस वही खाली। कपड़े थे जो तन पे थे। बिल्कुल कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो खुशहाल हैं, अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं आप सिलसिला चिश्तिया के मजाज भी हैं? हाँ। किसके मजाज हैं? चिश्तिया साबरिया, वो तो है, आप हज़रत खिलाफत मियां- किसकी है? हजरत मियाँ सैयद मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद? मेरे वालिद, अच्छा वो थे अपने वालिद के, अच्छा। हजरत मियाँ नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो थे हजरत मियाँ नबी बख्श रहमतुल्लाह अलैह। यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये सिलसिला है इसी में? चिश्ती साबरी, हाँ जी हजरत बाफरी गंजा शकर, हजरत अली अहमद साबर, कलिया शीहवाल, मैं वहाँ गया इंडिया में, उनके मिजाज। यानी जब आप पार्टीशन से पहले गए? हाँ कहीं पार्टीशन के बाद कभी गए? ना, फिर नहीं गया। कभी नहीं। सिलसिला चिश्तिया के उन बुजुर्गों से कभी मुलाकात हुई जो उस वक्त खानकाह से उस मुंसलिक हैं अजमेर शरीफ? नहीं मैं कभी मुलाकात नहीं? ना, अच्छा अच्छा। और सिलसिला चिश्तिया के कितने बुजुर्ग आपके कोई दोस्त वगैरह? मेरे दोस्त हैं सारे दोस्त हैं, नहीं वो तो है भाई वैसे सब होते हैं। हाँ। आना जाना मुलाकात सिलसिला चिश्तिया। सबके साथ। अच्छा आपके खुलफा कितने हैं? उल्फा में ज्यादा 3-4 है ज्यादा। अच्छा ज़्यादा। अच्छा कोई नाम याद है आपको? हाँ, मलक लियाकत अली, अच्छा मलक सगीर अहमद, अच्छा माशा अली अहमद, वो कहाँ हैं? और माशा अली में मुल्तान में, मुल्तान में। सगीर अहमद कराची में, अच्छा एक हाजी खुदा बख्श वो सिंध के अंदर अच्छा। सांगड़ में। सांगड़ में भी एक खलीफा है आपका, कराची में, एक मुल्तान में और एक गुजरांवाला। 4 खुलफा हैं। अच्छा जी तो आपने अपनी जो मसनद नशीनी है आपकी हाँ, कब संभाली थी? ये आपके मैंने वालिद जब फौत हुई तो? 59 में, 59 59 में, अच्छा। जब अयूब का मार्शल आया अच्छा उस वक्त। तो उसके बाद आपके मुरीदैन की तादाद कितनी होगी आपको अंदाजा है? बस ये मैं दे रहे? बड़ी बताइए। और हर साल आप उर्स भी करवाते हैं, कवाली भी कराते हैं? हर साल कवाली होती है, खास गान के नाम में आप भी शामिल होते हैं। हाँ, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने सब कुछ दिया है। सब कुछ जो
अपने हबीब शुक्र की है वसीले। हजूर का सदका, खानदान का सदका, मेरे पीर मुर्शिद की दुआ, हर चीज़। हमने कभी झूठ नहीं बोला, जान तो ला खान से भी झूठ नहीं बोलते। अलग शुक्र है। अच्छा जी हाजी साहब, आप कोई ऐसी बात जो आपको पसंद हो और आप हमारे जो है ना उतराव वाइफ के जो है ना व्यूज़ को बताना चाहें। मेरी बात सुनो, अब यहाँ बड़े बड़े मलक साहबान बैठे, हम इनका एहतराम करते, वो हमारा करते। जब गली में घुसता है शाह साहब, हाजी साहब आगे साहब तो जी करते। मैं अर्ज कर रहा हूँ ऐसा कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहें जो हमारे चैनल के लोगों को, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बस मैं तो ये कहता हूँ कि नमाज पढ़ो, बाकी मुसलात मतलब ज़कात दो, नमाज पढ़ो, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ जाए, बैठ कर पर लेट जाओ, हाथ उठे, आंखों की माफ नहीं, नमाज पढ़ो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें दुआओं में याद रखें, आप बुजुर्ग हैं। अच्छा, आखिर में ना जो आप, क्योंकि आपके बाल स्याह हो चुके हैं, तो ज़रा वो दस्तार से उतार कर दिखा दें, थोड़ा सा दिखा दें भाई। हमने सुना है, बुजुर्ग कहते थे कि 100 साल की उम्र में जब बंदा पहुंचता है तो बाल भी स्याह हो जाते हैं। हमारे पहले होंगे, इनके ये फरमा रहे हैं कि इनकी 93-94 साल उम्र है, तो इनके बाल से काले हो चुके हैं। अब देखना ये है कि काबिल ज़ियारत शख्सियत हैं, बुजुर्ग हैं। अल्लाह पाक इनकी दुआओं में बरकत डाले और हमें कामयाबी दे, अल्लाह आपको मदीना ले जाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, अब हम आपको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जिस तरह आज साहब फरमा रहे थे कि जब वो आए, चंद कमरे थे, खाली कमरे थे, अल्लाह ने उन्हें मेहनत का सिला दिया, बेटे दिए, सब कुछ दिया, दीन के लिए हिजरत की इन्होंने, वतन छोड़ा, माल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और इस पाक सरज़मीन जो अल्लाह ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े अता की, के लिए कुर्बानी दी। अल्लाह उन नस्लों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए जिन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी। आज मैं आपसे वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, ये मेरे पीछे हाजी साहब का घर है, सामने कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये 3 मंजिला घर है। एक वक्त था कच्चे मकान थे, आज शहर में सिर्फ 3 मंजिला घर इन्हीं का है। ये अल्लाह की देन है। अगर तवक्कल अल्लाह से रखेगा इंसान, अल्लाह पाक सब कुछ अता करता है। वही है कायनात को पालने वाला, वही सब कुछ अता करने वाला है। जी व्यूअर, आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपने हमें बताना है कमेंट करके। जी देखते रहिए उतराव वाइब, वतन की खूबसूरती के रंग, उतराव वाइब के संग। मेरा और आपका हो अल्लाह ने के बान। वतन अजीज़ के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।